What? Did you notice a difference? Are you also thinking, why am I starting this video in the dark? Because to me, I believe that we live in a world full of colors. We live in a cheerful world. But sometimes such things happen that they make us think why the dark side of this world has been exposed. This concerns rights of all victims. This concerns the rights of rape victims. This concerns rights of people, primarily women, because of our gender centric laws, who have been suffering from a trauma. Therefore, this is very important. This is Advocate Isha Kapoor, and you're watching Vlogish. Yes, we are talking about State versus Tarunjit Tejpal. This is a decision which was given on May 21st, 2021, and since then it has been in headlines. I got a chance to read the entire judgment, which was of some 527 pages. And what I felt like after that, immediately after that, I was astonished, I was shocked at some paragraphs that were mentioned in the judgment. And I was questioning my knowledge of the case laws, of the laws that I have read till now, of the Evidence Act even. So the case concerned a journalist who accused one of her bosses of allegedly forcing himself upon her while they were in a moving elevator, and not once but twice. So we are nobody to discuss or to comment upon the correctness of the judgment, the correctness of the decision. But of course, we can analyze how the court reached that decision in the end. Of course, the Sessions Court acquitted Tarunjit Tejpal of all the charges, which included Section 376 2K, Section 376 2F, 354, 354A, and many other sections as well, जो कि rape charges, outraging modesty of a woman और बहुत सारे उसी तरह के सेक्शंस हैं, बट उनको एक्विट कर दिया गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने, कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने उन्हें बरी कर दिया, अगर हिंदी में हम सिंपल भाषा में कहें तो. अब प्रॉब्लम क्या है कि कोर्ट इस डिसीजन तक पहुंचा कैसे, उसने क्या क्या एविडेंसेस को, किस किस की टेस्टिमनीज को और किन किन चीज़ों को जजमेंट में डिस्कस किया, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अब हम बात ये नहीं करेंगे कि हम जजमेंट को यूं ही क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उसके एक एक वर्ड को पढ़ के देखने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ऐसा क्रिटिसिज्म कर दें जिसकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी इस पॉइंट पे, बिकॉज जजमेंट के अगेंस्ट अपील भी की जा चुकी है. बट ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है डिस्कस होना, क्योंकि मेरे करियर में भी अभी तक आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ केस वंस. सो इट इज़ येट टू बी अपील्ड, उसको भी अपील करना है. इट इज़ अ डिसीजन दैट केम फ्रॉम द मथुरा, one of the courts in Mathura only. So it will be appealed before, the appeal will go before the, it will lie before Allahabad High Court. That is why it shocked me when this kind of a thing happened in such a case, which you can even call as high profile, because people being involved are people who are in a state of authority, people who are known by a lot of other people. Let's get to the point. द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस इन दिस डिसीजन वो ये था कि प्रोसिक्यूशन के अपने केस को एस्टैब्लिश करने पे ऑफकोर्स एक क्रिमिनल ट्रायल में बर्डन डाला जाता है, लेकिन वो ओनस शिफ्ट भी होता है, ये भी हम जानते हैं. बट इस केस में मैंने थ्रू आउट द जजमेंट ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, यानी कि जो रेप विक्टिम खुद थी, उनकी टेस्टिमनी को किसी भी तरह से तोड़ने की पूरी जजमेंट में कोशिश की जा रही थी. अब जजमेंट में कोशिश तभी की जा रही थी जब एविडेंसेस थे, बट एविडेंस को भी हम कैसे देखते हैं, एविडेंस को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एडमिट करवाते हैं एविडेंस एक्ट के में दिए प्रोसीजर्स और रूल्स के ज़रिए. अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला काउंसिल या एडवोकेट मेरे क्लाइंट से या विक्टिम से कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जो कि वो नहीं पूछ सकता और उसको मुझे वहीं पे रोक देना चाहिए, तो मैं उसे एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन देके ऑब्जेक्शन रेस कर सकती हूँ कि इस तरह का सवाल तो आप उनसे पूछ ही नहीं सकते थे. और उन्हीं में से एक सवाल होता है विक्टिम जो है
उनसे उनके पास्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को सामने लाना, कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए कि उनका कंसेंट था उस समय भी। जैसे कि मैं कुछ ऐसा कह दूं, इस जजमेंट में एक पॉइंट पे जाके ये भी डिस्कस किया गया कि जो विक्टिम है, शी actually engaged in such conversations which had sexual overtones with her friends. All her WhatsApp chats, images, personal messages were brought in as evidences to the court. I see no problem in bringing those as evidences, but what I see a problem in that is हुआ क्या कि उन एविडेंसेस को बेसिस बना के ऐसा बोला गया कि विक्टिम जो हैं, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं, उनका तो कुछ रवैया ही ऐसा है, उनका तो कुछ एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो ऐसी सेक्सुअल ओवरटोन्स वाली कॉन्वर्जेशन कैजुअली करती हैं, और वो अक्यूज्ड के साथ भी ऐसी कॉन्वर्जेशन को कैजुअली किया करती थी। और कुछ इसी तरह के तर्क देके, इसी तरह के लॉजिक्स देके एंड में ये कंक्लूजन भी निकाला गया कि इस कारण से प्रोसिक्यूट्रिक्स को एक क्रेडिबल विटनेस नहीं माना जा सकता है, उनकी टेस्टिमनी पर बिलीव नहीं किया जा सकता है और उनकी ट्रूथफुलनेस को क्वेश्चन किया गया। पैराग्राफ नंबर्स 19, 20 and 21 of this long judgment. The court referred to various instances where it was found that the prosecutrix, that is the victim, she was getting advice from eminent lawyers, eminent people, famous people, and respectable people from across the country. एंड अपेरेंटली एक जगह ये बोला गया, जैसे कि हम सभी जानते हैं हु इज़ इंदिरा जयसिंह, वहाँ पर ये बोला गया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की चैट से ये भी पता लगा है कि उन्होंने एक बार इंदिरा जयसिंह से भी कॉल पर, उनके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उन्होंने कॉल पर बात की और उन्होंने उनका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर रखा था, किस नाम से, एज ब्रह्मास्त्र। ये भी जजमेंट में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया। और साथ में आगे ये भी लिखा गया कि हु इज़ इंदिरा जयसिंह, हु इज़ अपेरेंटली कंसिडर्ड फेमिनिस्ट. So this word feminist was used in a way, if I interpret it according to the paragraph, according to the line that it was put in, it seems like feminist is such a word, feminist is being a feminist is such a quality that someone shouldn't have. And if you're a feminist, then that means you're going to support someone who is not a trustworthy person in the eyes of the court. So I certainly feel that the use of that word, the placement of that word in the paragraph, in that particular paragraph, was not right, was derogatory to the word itself. Because being a feminist, according to me, stands for being someone who wants, who craves for, who works for equality between all genders. I won't even say men and women, because I want to be inclusive here. So it just means promoting equality. I don't know why people confuse it with preferring a particular gender or a particular sex. And अगला पैराग्राफ है पैराग्राफ 27. विक्टिम ने बोला था कि जब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ इनसाइड एन एलिवेटर, इनसाइड अ लिफ्ट, तो वो बहुत ही एक शॉक और ट्रॉमा के स्टेट में आ गई थी और एक तरह से उनकी आंखों में आंसू थे. सो शी सेड शी वाज ब्लिंकिंग इन टीयर्स. बट देन व्हेन द कोर्ट सॉ द CCTV footage, you know how the CCTV footage is, and if you're in a state of shock, if you're in a state of trauma, it isn't that it will necessarily show on your face, and that too when you have been raped. And that was not an act which continued for hours or so. There was something very there was something that the prosecutrix, that the victim would have never expected. I am not commenting upon what is right and what is wrong. Maybe one party is wrong, maybe the other party is wrong, maybe the victim isn't right in all cases, maybe the victim isn't truthful always. But the kind of analogy, the kind of logics that we have used to reach a conclusion here is what I find wrong. So कोर्ट ने बोला कि CCTV फुटेज देख के तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, वो किसी शॉक या ट्रॉमा के स्टेट में थी.
उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे एविडेंसेस को एनालाइज किया, बोला कि उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई उसके बाद जिसमें कि वो बहुत ही हैप्पी लग रही थी, उन्होंने उस फोटो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया एंड व्हाट नॉट। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि इंसिडेंट ऑफ रेप हुआ था या नहीं हुआ था। Then I come to para 147. Para 147 is apparently the longest seeming para in the judgment. If you want to straight away jump to the para, you can see page number 243 of the judgment that I am talking about. So WhatsApp conversations देखने के बाद कोर्ट ने कुछ ऐसा बोला कि हमें पता लगा है कि अक्यूज्ड और जो विक्टिम थे वो तो जनरली भी बहुत प्लेफुल और फ्लर्टेशियस कॉन्वर्जेशंस करते रहते थे अबाउट two things, and those two things were desire and sex. So the court even went to the extent of saying that when we said that you used to have flirtatious conversations with the accused, she did not deny them, and this was one of the reason. ये एक कारण था जो कि जिससे कि वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि वो एक ट्रूथफुल विटनेस नहीं है, कि वो ट्रूथफुल उनकी टेस्टिमनी को नहीं माना जा सकता है विक्टिम की खुद की, क्योंकि वो अक्यूज्ड के साथ प्लेफुल एंड फ्लर्टेशियस कॉन्वर्जेशंस अक्सर करा करती थी। इसी पैराग्राफ में अगर आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स से यानी कि विक्टिम से क्या क्या सवाल पूछे गए। मैं आपको 3 सवाल बताती हूँ। पहला सवाल था whether it is immoral to have consensual sex with different persons, यानी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी कि विक्टिम, रेप विक्टिम से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि क्या बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करना इमोरल है या मॉरल है। तो विक्टिम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ जो कि कंसेंट यानी कि 2 लोगों की हामी के साथ होती है वो इमोरल है, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि तुमको लगता है कि क्या अल्कोहल कंज्यूम करना और सिगरेट स्मोक करना इमोरल है, मतलब वॉलेंटरीली ये सब करना इमोरल है। तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया, विक्टिम ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक सर्टेन एज पे हो, अगर आप मेजर हो, अगर आप उस एज पे हो जहाँ आपके लिए ये करना इलीगल नहीं है टू कंज्यूम अल्कोहल और टू स्मोक सिगरेट्स, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अगेंस्ट योर रिलीजन दैट आई डू नॉट थिंक दैट इट इज़ इमोरल। लास्ट सवाल जो उनसे किया गया वो था कि क्या आप अक्सर अपने फ्रेंड्स से ऐसी बातें, ऐसी कॉन्वर्जेशंस करती हैं जिनमें सेक्सुअल ओवरटोन्स होती हैं। तो विक्टिम ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं इसका जवाब कैसे दूं। अब मैंने ये चीज़ क्यों हाईलाइट करी? आई हाईलाइटेड दिस बिकॉज आई फाइंड इट एक्सट्रीमली कॉन्ट्रडिक्टरी, इन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन टू the provisions, to some of the provisions of the evidence act। दो कोर्ट ने बोला कि ये सवाल हम इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल उसके कंसेंट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, ये सवाल हम किसी और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच हैज़ अरिजन इन द केस उसको प्रूव करने के लिए दे रहे हैं। बट अल्टीमेटली तो यही आया ना कि उसकी टेस्टिमनी को डिस्क्रेडिट करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। जजमेंट में देर आर डिटेल्स अबाउट हर ड्रेस, हाउ लॉन्ग हर ड्रेस वॉज, which parts of her body were visible, which attire she was wearing, details about her underclothes, her undergarments, details about her being a fit person and being a yoga trainer, why she couldn't push the accused away when she was being raped, when she was being attacked, and the judgment even mentions the details of her sexual encounter with another man. I don't think that the details of her sexual encounter with another man was relevant. अब मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? आपको क्या लगता है कि सिर्फ यूं ही मुझे क्यों लग रहा है जजमेंट गलत है? इट्स नॉट बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग इन माई हेड, इट इज़ बिकॉज एविडेंस एक्ट। Let's come to one of the section 155। सेक्शन 155 में एक क्लॉज नंबर 4 हुआ करता था 2003 तक, पर 2003 में उस क्लॉज नंबर 4 को ऑमिट कर दिया, यानी कि हटा दिया गया था। अब उस क्लॉज नंबर 4 में लिखा ये था कि अगर एक रेप केस, अगर एक रेप ट्रायल हो रहा है और उसमें हम कुछ भी चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये एविडेंस दे सकते हो कि जो
विक्टिम है वो इमोरल कैरेक्टर की है, बट अब लॉ ये है कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि क्योंकि विक्टिम इमोरल कैरेक्टर की है तो उनकी टेस्टिमनी को आप बिलीव नहीं कर सकते, उनकी ट्रूथफुलनेस को आप बिलीव नहीं कर सकते. Let me bring in one point here. There is a case which everybody in the law school is taught, and that's the Mathura rape case. We all know about it, the Tukaram case. उसमें भी विक्टिम की टेस्टिमनी को कैसे डिस्क्रेडिट किया गया था कि शी इज़ हैबिचुअल ऑफ हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, हाउ कैन वी बिलीव हर, देयर वाज नो रेप. And when the rape was done by a police personnel, a person in authority. उसके बाद उस जजमेंट को बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ, उसके अगेंस्ट बहुत चीज़ें हुई, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए. फिर रीसेंट अमेंडमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो 2013 में कितने सारे अमेंडमेंट्स आए थे और ये सब चीज़ें चेंज हो गई और अब आप ये नहीं कर सकते. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट विच इज़ सेक्शन 53A, जो कि ईयर 2013 में आया है. उसमें बोलते हैं कि जब कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज़ एन इशू एक रेप ट्रायल में, तो हम उसके कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते. हम ये नहीं कह सकते बिकॉज तो इससे हमें ना पता है कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं हम, कि हम ये नहीं बोल सकते कि बिकॉज द वुमन वॉज ऑफ बैड कैरेक्टर. एंड व्हाट इज़ बैड कैरेक्टर? बिकॉज द वुमन वॉज हैबिचुअल ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, बिकॉज द वुमन वॉज हैबिचुअल ऑफ having sexual intercourse with multiple partners, or because she had a boyfriend, or because she was unmarried, maybe because she was unmarried and she was already pregnant, maybe because she had a boyfriend whom she was sexually active with, maybe because she was a divorced person but still she is in a love relationship with another man. You cannot bring in these things and say that the victim is already of an immoral character. No, that's not allowed. That would be disrobing a victim. That would be disrespecting a victim. You have to show some sensitivity. And the reason I am concerned is the judgment clearly lacks sensitivity towards rape victims. Now, if you see another section, which is section 146A of the Indian Evidence Act again. So it says, in a rape trial and during cross-examination of victim, it is not permissible to put questions as to the general immoral character of the victim, to put questions as to the previous sexual experience of the victim, or for proving the quality of consent or the consent given by her, given or not given. Okay, so you can't say that because she used to have sexual intercourse twice a week, or maybe even daily, or she used to have sexual intercourse with her partner without marriage being in place, without her being married, therefore we should discredit her testimony, therefore she'll be unreliable, she is a woman of bad character, immoral character, we should not believe her. You can't say all of this. This is what the law says. This is how mature our legal justice system is. जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जनरल लीगल अवेयरनेस की एक सीरीज़ बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई अनहोनी, ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ऐसा कोई क्राइम, क्रिमिनल इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, या आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिन्होंने ये ट्रॉमा को सफ़र करा है या वो कर रहे हैं, या फिर उन्होंने इस ट्रॉमा के अटेम्प्ट को भी सफ़र करा है, तो उनके साथ कैसा सलूक नहीं किया जा सकता. कुछ लोगों ने बोला कि ये जजमेंट है, इससे पता लगता है कि रेप विक्टिम्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बट आई से कि ये जजमेंट है जिससे ये पता लगता है कि कैसा बिहेव, कितना इनसेंसिटिव एक अथॉरिटी को, अ पर्सन इन अथॉरिटी को नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ ओनली. And this is backed by reason, this is backed by law, this is backed by logics. So I hope this was useful for all of you guys. I hope you learned something new today, and I hope
that you continue to spread this awareness, you continue to share this video until victim shaming and until such insensitivity towards the victims stop. Please share this message, please share the video. I'd be highly grateful. Thank you.